Hello students, welcome back to the second lecture of cell division. In our previous lecture, we discussed what is cell division, what are the advantages of the cell division, क्या importance होता है, how body uses this process of cell division, and roughly we studied about the cell division, what is mitosis, what is meiosis. Now in today's lecture, we are going to discuss about the cell cycle in detail. What is cell cycle, what are the advantages of the cell cycle, and what are the phases which is present in the cell cycle. All these things we are going to discuss in detail in today's lecture. So first of all, I would like to give you one example. You all are familiar with the life cycle of butterfly or even a life cycle of a human being also. For example, if I am taking the example of a life of a butterfly, ये जो butterfly का life होता है, it starts with a egg, ठीक है? Then this egg converts into the larvae. Then larvae converts itself into the pupa. कैटरपिलर फॉर्मेशन होता है, फिर उसके बाद में आफ्टर मेनी चेंजेस और यू कैन से मेनी सिक्वेंशियल इवेंट फिर अडल्ट जो बटरफ्लाई होता है वो हमको मिलता है. इन द सेम मैनर what is happening in the entire life of the cell, how the cell form, यहाँ इनके फॉर्मेशन के बाद से, ठीक है, सेल के फॉर्मेशन के बाद, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सेल, ठीक है, there will be many changes in this cell and then it will divide and it will form into two daughter cells. So the entire process, ठीक है, उसकी जो बिगनिंग होती है उससे लेकर के उनके दो न्यू सेल बनने तक का ये जो पूरा प्रोसेस होता है, दैट इंटायर प्रोसेस इज नोन एज द cell cycle. So what is the definition of the cell cycle? Cell cycle का definition, it is very simple. Cell cycle is refers to the series of events. क्या होता है यहाँ पर? देर आर सीरीज ऑफ इवेंट्स, बहुत सारे आप क्या देखोगे, फेजेस होते हैं, चेंजेस होते हैं, दैट टेक्स प्लेस इन वन सेल. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सीरीज ऑफ चेंजेस और दिस सीरीज ऑफ इवेंट्स, ठीक है, there will be duplication of the DNA, then the cytoplasm will divide and the organelles will divide and they will form the two daughter cell. I hope you all know the basic structure of a cell. Basically जो कोई भी सेल होता है, आपने देखा होगा कि सेल जो होता है, सेल के आसपास में सेल वॉल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, then the cell contains cytoplasm and inside the cytoplasm you will see various cell organelles like nucleus, cytoplasm, Golgi bodies, lysosomes, mitochondria, endoplasmic reticulum, एंड हर किसी का एक अलग अलग जो है फंक्शन होता है. तो ये जितनी भी चीजें सेल के अंदर होती है, इन सारी चीजों का डुप्लीकेशन होता है, ये डबल होते हैं एंड उसके बाद में जो है सेल डिवाइड होता है और क्या होता है, दो जो न्यू सेल्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं. The cell cycle was discovered by the Prevost and Dumas in 1824. इन दो लोगों ने सेल साइकिल को 1824 में क्या किया था, डिस्कवर किया था. They were studying the cleavage of zygote of frog. जाइगोट का जो वो एम्ब्रियोलॉजी स्टडी कर रहे थे, तो वो जो उनका जाइगोट है वो उसका जो क्लीवेज होता था, ब्रेकडाउन, मतलब वो अलग अलग सेल्स में जो डिवाइड हो रहा था, उसको जब ये लोग पढ़ रहे थे तो उस टाइम पर उन्होंने सेल साइकिल को क्या किया था, डिस्कवर किया था. ठीक है, this entire process I am going to explain with the help of a diagram. See, this is the diagram of the cell cycle. Here you can जो basically जो phases होते हैं जिसको हमको पढ़ना है, तो the phases of cell cycle जो है इनको हमको दो major phases में क्या करना है, divide करना है. The first major phase of the cell cycle is the interphase. ठीक है, this entire thing, ठीक है, this entire phase is the interphase and the second major phase of the cell cycle is the M phase. This phase is known as the M phase. माइटोसिस और मियोसिस, इनमें से दोनों में से कोई भी हो सकता है. ठीक है, इंटरफेस इज अगेन डिवाइडेड इनटू G1 phase, S phase, G2 phase. ठीक है, and this M phase is divided into
प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकिनेसिस। ये सारी चीजें क्या है आपको क्लियरली आगे जब आप फेजेस को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक जो ह्यूमन सेल्स होता है, टिपिकल यूकैरियोटिक ह्यूमन सेल टेक्स अराउंड 24 hours to complete the one cycle of growth and division. The duration of the cycle, however, varies from organism to organism and it also varies from cell to cell. कैसा होता है कि ये जो सेल साइकिल होता है जो यूजुअली है, इट टेक्स अराउंड 24 hours to the cell to complete this entire cell cycle. For a cell it takes 24 hours, but the duration of the cell cycle also depends on जो cell होता है type of cell के ऊपर भी, and it depends on the organism also, कौन सा organism है, ठीक है। So basically आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि जो cell cycle है उसमें हमको दो major phases पढ़ना है. The first major phase is the interphase and the second major phase is the M phase, ठीक है। Now we are going to discuss these all phases in the detail. The first phase is the interphase, ठीक है। Earlier interphase was also known as the resting phase of the cell cycle. ऐसा माना जाता था पहले कि interphase जो है वो एक रेस्टिंग फेज है, इस टाइम पर सेल डिवीजन नहीं होता है तो सेल क्या कर रहा है, अपने आप रेस्ट कर रहा होता है, बट इट इज नॉट ट्रू। इंटरफेस को आप क्या बोल सकते हो, इंटरफेस इज ऑल्सो अ प्रिपरेटरी फेज। ये जो फेज होता है इंटरफेयर का, इसको हम प्रिपरेटरी फेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि सेल डिवीजन से पहले, ठीक है, हमको कोई भी टास्क करना होता है, हमको कोई भी काम करना होता है, तो उस काम को करने के लिए हम पहले प्रिपरेशन करते, तैयारी करते, उसके बाद हम काम करते हैं ना। तो उसी तरीके से जैसे कि ये सेल है, ठीक है, इनको डिवाइड करके दो नया सेल यानी कि सेल डिवीजन करना है, तो ये सेल डिवीजन करने के लिए ये डायरेक्टली तो हो नहीं जाएगा, इनको भी बहुत सारी तैयारियों की जरूरत पड़ती है। तो इंटरफेस का जो स्टेज होता है, इन दैट फेज और इन दैट स्टेज, ये जो इंटरफेस में सेल होता है हमारा, वो क्या करता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। Interphase is the time during which the cell prepares for the division by undergoing both cell growth, DNA replication, ठीक है। It occupies around 95% time of the over cell cycle. जो पूरा सेल साइकिल होता है उसका 95% टाइम जो होता है वो किसके लिए लगता है, इंटरफेस में। इसमें सेल का साइज भी डबल होता है, सेल के अंदर जितने भी कंटेंट होते हैं वो भी डबल होता है, डीएनए रेप्लिकेशन का भी जो होता है वो इंटरफेस में ही होता है। The first phase of the interphase is G1 phase. पहला फेज कौन सा होता है, G1 phase, ठीक है, गैप 1 phase जिसको आप बोल सकते हो। What is happening in the G1 phase? फेज ये जो होता है, ये फेज जो है वो किसके बीच में होता है, इट इज बिटवीन द माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। ये जो फेज होता है, ड्यूरिंग दिस फेज सेल्स जो है अपने आप को मेटाबॉलिकली एक्टिव करता है, सेल की ग्रोथ होती है, सेल्यूलर फंक्शंस होते हैं उनकी ग्रोथ होती है। इसके अलावा सेल जो होता है इसमें ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडीज, ऐसे बहुत सारे जो सेल्स के अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो जो सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं वहां पर भी क्या होता है, उनका भी रेप्लिकेशन जो होता है वो होता है। बट इन दिस फेज, G1 फेज में डीएनए जो होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। फर्स्ट फेज में क्या होगा, सेल का ग्रोथ होगा, सारे सेल्यूलर फंक्शन होंगे, जितने सेल ऑर्गेनेल्स होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, वो डबल होंगे, उनका रेप्लिकेशन वगैरह होता है। द सेकेंड फेज, ठीक है, द सेकेंड फेज इज नोन एज द S phase. What is happening in the S phase? S phase को synthesis phase भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, यहाँ पर डीएनए का जो है वो रेप्लिकेशन होता है इस फेज के अंदर। डीएनए, जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आई हैव 2 स्टूडेंट्स, ठीक है, एंड आई हैव 10 strings of thread which are of different color. I have 2 red color thread, I have 2 black color, 2 yellow color, like this I have 10 colors के thread है मेरे पास में, ठीक है। तो मुझे अगर उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है इन बिटवीन द 2 स्टूडेंट्स, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको अरेंज करना होगा, फिर स्टूडेंट्स को क्या करना होगा, देना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे कुछ तैयारियां लगती है।
तो वो सारी तैयारियां वगैरह जो होती है वो इंटरफेस में होती है। एस फेज में क्या होता है, अगर मुझे मतलब यहाँ पर ये देखो ये सेल है, ठीक है, ये सेल के अंदर जो डीएनए है ये 46 डीएनए, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, 46 जो है वो क्रोमोसोम्स है, ठीक है, अब मुझे इनको दो में डिवाइड करना है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, ये डीएनए की वैल्यू जो क्वांटिटी जो है इसको डबल कर लेंगे ताकि दोनों जो न्यू डॉटर सेल्स मिले उनको इक्वल इक्वल क्या हो सके, डीएनए या फिर जेनेटिक मटेरियल जो वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तो इसके लिए एस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ऑर्गेनेल रेप्लिकेशन होता है और डीएनए जो होता है फॉर्म होता है, ठीक है, जो डीएनए होता है उसकी क्वांटिटी डबल हो जाती है, ठीक है। सेंट्रियोल्स भी इस स्टेज में कैसा होता है, डिवाइड होता है, और सेंट्रियोल्स जो है वो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो आगे जब आप एम फेज पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा स्पिंडल फाइबर क्या होता है, सेंट्रियोल्स क्यों इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली आप समझ सकते हो कि सेंट्रियोल एक सेल ऑर्गेनेल होता है जो स्पिंडल फाइबर बनाने में हेल्प करता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। द थर्ड फेज ऑफ द इंटरफेज इज द G2 फेज। ये फेज में कैसा होता है, आरएनए, प्रोटीन और दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल्स जो सेल ऑर्गेनेल्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए, स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए, सेल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, वो सारे क्या होते हैं इस फेज में बनते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो फेज आता है वो कौन सा है, माइटोटिक फेज होता है जिसको एम फेज बोलते हैं। दिस इज द माइटोटिक फेज और फेज ऑफ इक्वेशनल डिवीजन आल्सो यू कैन से। तो ये जो एम फेज होता है, दिस माइटोसिस इज अगेन डिवाइडेड इनटू द टू स्टेजेस। यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पर माइटोसिस नहीं आएगा, यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस आएगा, तो वो आप करेक्शन कर लेना। माइटोटिक फेज में क्या होता है, माइटोटिक फेज के अंदर एक्चुअल सेल डिवीजन जो है वो होता है। तो इसको भी दो फेजेस में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज द कैरियोकाइनेसिस एंड अनदर वन इज द साइटोकाइनेसिस। व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस, व्हेन द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस टेक प्लेस इट इज नोन एज द कैरियोकाइनेसिस। एंड व्हाट इज साइटोकाइनेसिस, व्हेन द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म टेक्स प्लेस इट इज नोन एज द साइटोकाइनेसिस। तो व्हाट इज हैपनिंग फर्स्ट इन द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड होता है, और सारा न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद में उसके बाद क्या होता है, साइटोप्लाज्म जो उसका डिवीजन होता है उसको साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। देन दिस माइटोसिस और एम फेज जो है इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू द फोर फेजेस। इसमें भी कैसे होते हैं, चार फेजेस होते हैं। The first phase is the prophase, the second phase is the metaphase, and the third phase is the एनाफेज, एंड द लास्ट फेज इज द टीलोफेज। ये सारे फेजेस जो होते हैं वो होने के बाद में लास्ट में क्या होता है, न्यूक्लियस पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, और उसके बाद में जो साइटोप्लाज्म होता है उसका डिवीजन होता है जिसे कहते हैं हम साइटोकाइनेसिस। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, इन अवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द माइटोसिस इन द डिटेल। यहाँ पर आप एक जस्ट स्लाइड देख सकते हो, माइटोसिस क्या होता है, फीचर्स क्या होते हैं इसके, बट इसका डिटेल जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे। आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि माइटोसिस जो होता है वो किस में होता है, माइटोसिस टेक्स प्लेस इन द सोमैटिक सेल। आपको याद होगा हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था हमारी बॉडी में दो टाइप के सेल्स होते हैं। The first type of a cell is the germ cell and the second type of a cell is the सोमैटिक सेल्स। तो जो जर्म सेल्स होते हैं वो सिर्फ स्पर्म्स और एग्स बनाते हैं जो कि रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उनमें रिडक्शनल डिवीजन होता है जिसको हम मियोसिस कहते हैं। और माइटोसिस जो होता है उसके अंदर क्या होता है, सोमैटिक सेल होता है उसके अंदर ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इंटरफेस है, इंटरफेस के बाद में जब ये आप ये जो फेस देख रहे हो, ठीक है, ये पूरा दिस एंटायर फेज इज द कैरियोकाइनेसिस। ये एंटायर जो पूरा फेज होता है ये क्या होता है, हमारा कैरियोकाइनेसिस होता है। इसकी डिटेल्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आपको इतना ही समझना है, इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है।